Hello everyone, welcome back to the your electrostatic session. And as I all promised you all that we will be doing a few numericals based on the Coulomb's law, and you will see these numericals very much in your competitive exams, in your CBSE papers, everywhere you see numericals from this topic. So that is why we will be practicing a lot of questions. So today, what we'll be doing? We will be doing problems. Let me write the heading for you all. Today we will be doing problems on Coulomb's law. Okay. So this is the topic for today. We'll be doing few numericals and let us see. So first we have taken a simple question and let us read the first question. I've written the question for you. आगे questions नहीं लिखे हैं मैंने. So I've just written the first question right now. Okay, so I'll read the question to you all and you guys read it with me. So you have two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. Okay, so let's try to do this. So we have, okay, so let's take the yellow color. Okay, so I will give you a moment. Think about how to solve this question. If you can't, like pause the video, try to solve this question on your own. If you can't, see the video. Just don't keep मैम ने ये सॉल्यूशन लिखा है तो उसको कॉपी कर लो. No, you do not have to do that. पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो. Try it. नहीं होगा, then see the solution. Okay? अगर सीधा सॉल्यूशन देखोगे, उसको कॉपी में लिख लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, right? ट्राई इट ऑन योर ओन. जहां पर स्टक होगे सी द सॉल्यूशन. ओके, सो अब मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दे रही. लेट्स गेट टू द टॉपिक. राइट. Okay, so we have two similarly equally charged identical metal spheres. Now, what does so that means that I have two metal spheres, let us say A and B. Okay, and they are separated by some distance r. I'm saying all this, right? हमें दे रखा है A और B हैं, दो spheres हैं, and they are similarly equally charged. यानी कि जितना चार्ज A पर है उतना चार्ज ही B पर है, राइट? जितना चार्ज आपकी A मेटल स्फीयर पे है उतना ही चार्ज आपकी B मेटल स्फीयर पे है. और आपको दिया है दैट A और B एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. सो इफ दे आर रिपेलिंग दैट मींस दे हैव सेम साइन ऑफ चार्ज, राइट? जो उनका चार्ज का साइन है दैट इज सेम. तो यानी कि अगर A पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव है, अगर A का नेगेटिव है और B नेगेटिव है, राइट? तो दिस इज द केस. दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों या तो नेगेटिव होंगे. लेट अस से दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? हमने ये चीज अज्यूम करी है दैट दे आर रिपेलिंग ईच अदर एंड द फोर्स इज व्हाट 2 into 10 raised per minus 5 Newton. So the force उन दोनों के बीच में दैट इज 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. And we did the expression for the Coulomb's force, right? हमने एक electrostatic force का expression किया था. What was that expression? The expression was K Q1 Q2 by R square. दिस इज व्हाट वी डिड. अब यहाँ पे दोनों का चार्जेस सेम है. और क्या है, मैंने अज्यूम करा है द चार्ज ऑन द ए स्फीयर एंड चार्ज ऑन द बी स्फीयर इज कैपिटल क्यू. तो यानी कि अगर मैं Q1 में भी कैपिटल क्यू पुट कर दूंगी, Q2 में भी कैपिटल क्यू पुट कर दूंगी, तो आई विल गेट क्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट डिस्टेंस? दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर. गॉट इट? तो यानी कि आई हैव दिस एक्सप्रेशन दैट 2 into 10 raised to power minus 5 is kq square by r square. Now this is the information that I got from this line. Okay, इस लाइन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई. इसको मैं बॉक्स बना के रख लूंगी कि ये मुझे आगे काम आएगी. ठीक है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन एक तरीके से, राइट? और इसको मैं बॉक्स बना के संभाल के रख लूंगी कि इसको मैं क्वेश्चन में आगे यूज करूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन को स्टेप्स में करो. पहली लाइन पढ़ो, उसको समझो कि उससे हमें क्या पता चल रहा है, उसको लिख लो. ठीक है, और फिर जो लिखा हुआ होगा ना उससे करना आसान होगा न्यूमेरिकल. अगर उसी वक्त पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ोगे कि अरे करना क्या है, एक लाइन पढ़ो, उससे समझा जो उसको लिख लो. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन.
A third identical, so I am here, right? A third identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. अब हमने एक चीज सीखी थी that जब आप एक न्यूट्रल बॉडी को अगर एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो, राइट? हमने सीखा था ना द वीडियो नंबर 1, हाउ डू यू चार्ज बॉडीज, राइट? मेटेलिक बॉडीज को आप चार्ज कैसे करोगे? तो आप जब क्या करोगे, लेट मी गिव यू this thing, right? So if I have one body which is charged and I have one body which is neutral, okay, so let us say it has some positive charge. So this body was positively charged, the first body, and the second body was neutral. और जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाती हूँ, if I am if I make a contact between the charged body and the neutral body, what happens? Upon contact, जब इन दोनों bodies का contact होता है, charge gets separated such that the potential on both the bodies is equal. Okay? That means इस तरीके से तुम्हारा चार्ज सेपरेट हो जाएगा कि दोनों बॉडीज पे पोटेंशियल इक्वल है। अब तक हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, सो लेट्स जस्ट लीव दिस एक्सप्लेनेशन एंड इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक बॉडी चार्ज है, एक बॉडी न्यूट्रल है, और मैं उन दोनों को टच करती हूँ, तो चार्ज इक्वली दोनों बॉडीज में डिवाइड हो जाएगा, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो ये चार्ज बॉडी है, अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज था, इसके पास कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास जीरो चार्ज है, ठीक है? जब मैं इसको कांटेक्ट में लाती हूँ, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम यू विल सी that the charge will get equally distributed on both the bodies, यानी कि पहली बॉडी के पास चार्ज हो जाएगा Q/2 और दूसरी बॉडी के पास चार्ज हो जाएगा Q/2. Charge gets equally distributed after the contact. The charge gets equally distributed. Okay, so this is a very important point. आप बहुत सारे questions में देखोगे कि ये concept लगता है और बच्चों को नहीं पता होता. That is why I am giving it time, ताकि आप इसको absorb कर लो अपने अंदर कि जब एक बॉडी न्यूट्रल है, एक चार्ज है, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, और आप उन दोनों को टच करोगे तो क्या होगा? चार्ज विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द बॉडीज. सो दैट मीन्स अगर इसके पास चार्ज Q था, तो अब दोनों बॉडीज के पास कितना चार्ज आ जाएगा? चार्ज विल बी Q/2 and Q/2. if if you want the detailed explanation of how the metallic bodies are charged, what are the three processes, I will recommend you to watch the first and the second video which I have uploaded in this playlist. Okay, go through that and then come back to this question. You will have more clearance. Okay, आपको और अच्छे से समझ आएगा. But I hope आपको यहाँ पर भी समझ आ गया हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये तो मैं थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी आपको कि ये चीज हो रही है, राइट? तो अब देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन कह रहा है एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है. व्हाट इज अनचार्ज स्फीयर? जिसके ऊपर चार्ज जीरो है, दैट इज अ न्यूट्रल बॉडी. सी इज टच्ड टू ए एंड देन प्लेस. तो हमने सी को टच करा ए से, तो सी को जब मैंने ए से टच करा, जब मैंने सी को ए से टच करा, so suppose this is my C body which is the neutral body and this is the A body. और हमने क्या assume करा था? A के पास कितना चार्ज है? A के पास Q चार्ज है. तो टच करने पे क्या होगा? टेल मी. दोनों बॉडीज C के पास भी और A के पास भी कितना कितना चार्ज आ जाएगा? Q/2 एंड Q/2. वाई? अगर आपको पेपर में सपोज यू हैव योर बोर्ड एग्जाम और उसमें ये क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि सीधा Q/2 और Q/2 लिखोगे. यू वुड हैव टू गिव अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन. एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दोगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट दैट अपॉन द कॉन्टैक्ट between the neutral sphere C
and the charged sphere A, the charge gets equally divided between A and C. That means the charge on A and C is Q/2। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सीधा नहीं ले सकते हो कि अपने अगले स्टेप में चार्जेस को Q/2 लेके सॉल्व कर दिया। नो, यू हैव टू राइट आपने ऐसा क्यों करा है। हाँ, इफ यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वहां पर तो कोई आपसे पूछेगा नहीं ना कि आपने ये चीज क्यों करी है, राइट। वहां तो आपको लिखना नहीं पड़ता। बट वेन यू आर अपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो वहां पर तो आपको लिखना पड़ेगा ना दिस थिंग। सो दैट इज व्हाई दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अगर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो फिर कुछ नहीं लिखना, जल्दी 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 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ओके। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग केयर ऑफ बोथ। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, दोनों के लिए, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अब दोनों पे मुझे चार्ज पता चल गया, एक पे Q/2 है और दूसरे पे भी Q/2 है। Now moving on back to the question. And then it is placed. Now C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. तो यानी कि अब क्या केस है? The case is this, that you have a A sphere like this, you have a B sphere over here, and C is kept at the midpoint. ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम करा था? हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम करा था दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज आर। ठीक है। तो इसका मतलब ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R/2, राइट, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा है ना, मिड पॉइंट पे रखा है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक तो बहुत आसान है समझना। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट, दैट अब हमें लिखना है कि इन तीनों बॉडीज पे कितना चार्ज है ना। फाइनली इन तीनों बॉडीज पे कितना चार्ज है। तो बी तो हमने किसी से टच नहीं करा, तो बी पर तो क्यू ही रहेगा चार्ज, है ना। बी पर तो क्यू ही रहेगा। लेकिन ए और सी का चार्ज कितना हो गया था? यहाँ पर ए और सी का चार्ज हमने कितना देखा था? इट वॉज Q/2, राइट, इट वॉज Q/2। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो ए और सी का चार्ज होगा, व्हाट विल दैट चार्ज बी? दैट विल बी Q/2 एंड Q/2। नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन एंड सी, calculate the net electrostatic force on the C. So we have to calculate what is the net electrostatic force on C. अब हमें C के ऊपर फोर्स देखना है। तो C के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक तो फोर्स लगाएगा ये, एक तो फोर्स लगाएगा ए बॉडी और एक लगाएगा बी बॉडी, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू force due to A. Now force is a vector quantity, that is why we have used the arrow over, है ना। force क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक एरो यूज करेंगे। फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने वो गलती कर दी ना डायरेक्शन की, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखो कैसे करोगे आप क्या लिखोगे? आप ए की वजह से जो एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का वो लिखोगे, बी की वजह से जो एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का वो लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। दिस इज व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि आपको ए की वजह से, ए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, आप उन दोनों का एक्सप्रेशन लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और बता दोगे ये आंसर है। पर ये क्यों गलत? व्हाई इज दिस रॉन्ग? आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ए जो आपका फोर्स लगा रहा है, लुक एट दिस बॉडी ए, इस ए बॉडी को देखेंगे, ठीक है। ये जो ए बॉडी है आपके पास, ये सी के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ना। इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है,
सी भी पॉजिटिवली चार्ज है और बी भी पॉजिटिवली चार्ज है, राइट? तीनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर तीनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ए और सी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? तो सी, ए जो है वो सी पर ऐसा फोर्स लगाएगा कि सी दूर जाए। वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, तो सी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, वो कहेगा तू पीछे हट, दूर जा, राइट? Similarly, so this is what? This is the direction of the force due to A. This is the direction of force due to A. What is the force due to B? What will be the direction of force due to B? क्या वो अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भेजेगा? Come on, think. It will obviously send it away. It will try to repel it. क्यों repel करेगा? क्योंकि same charge है and like charges repel each other. We know that, right? Again, what are the properties of charges? Like charges repel each other. तो B जो है वो इसको पीछे भेजने की कोशिश करेगा। Now this is what, so what is happening? आप क्या कर रहे हो? A चाहता है इस डायरेक्शन में जाए, B चाहता है इस डायरेक्शन में जाए। तो what will be the net force, that what will be the net force acting on the C? It will actually be the difference of the two forces, A की वजह से और B की वजह से। इसमें से अब एफ ए और एफ बी दोनों में से जो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, आप एक डायरेक्शन में, सपोज आई गिव यू केस, आप इस डायरेक्शन में एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में आप उस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? सोचो। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाना चाहेगी? बॉडी इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। दिस इज द नेट मोशन ऑफ द बॉडी। किस डायरेक्शन में है मोशन? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में है मोशन। ठीक है, ये तो समझ आ गया। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा मोटा सा आदमी आपको धक्का दे रहा है और एक पतलू सा आदमी धक्का दे रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मोटा आदमी धक्का दे रहा है उसी डायरेक्शन में तो जाके गिरोगे, है ना? पतले वाला तो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, लेकिन मोटा वाला तो इसे धक्का मार देगा, है ना, जोर की। इट विल हैव मोर फोर्स। तो यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है, एफ ए ज्यादा बड़ा है या एफ बी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, फोर्स ए की वजह से ज्यादा बड़ा है या फोर्स बी की वजह से ज्यादा बड़ा है? चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये तो एक्सप्लेनेशन थी बस, ये एक्चुअल नहीं था आंसर। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू ए। ए बॉडी की वजह से क्या फोर्स है? तो क्या है फोर्स ए बॉडी की वजह से? के। अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही था ना? अब देखो, के तो के रहेगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द ए? ए पर कितना चार्ज है? Q/2। बी सी पे कितना चार्ज है? Q/2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? कितना डिस्टेंस है ए और सी के बीच में? R/2। सो वी हैव, दिस इज द एक्सप्रेशन कि फोर्स ड्यू टू ए ऑन सी, कि सी बॉडी पर ए कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो इतना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी हैव के क्यू स्क्वायर बाय 4 divided by r square by 4. This 4 and this 4 will get cancelled and we will have kq square by r square. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, है ना? ये तो सिंपल कैल्क, ये तो बस काटना कूटना था, मैथ्स थी, सिंपल है ना ये तो। अब तो बहुत समझदार है हमारे बच्चे, ये तो कर ही लेते हैं, है ना? चलो मैथ्स तो कर ही लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर एक्सप्रेशन, फोर्स ड्यू टू बी ऑन सी, कि बी सी पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हमारे पास क्या है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के तो ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन बी? चार्ज ऑन बी इज क्यू, है ना? कैपिटल क्यू है ना बी पे चार्ज, ये लिखा है यहाँ पे। और सी के ऊपर कितना चार्ज है? Q/2। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी? दैट इज R/2, राइट? सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव के क्यू स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय 4। यही है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 2
kq² by r square. So this is the force due to B on C. तो अब मुझे देखकर बताओ, नाउ टेल मी, क्या ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है या ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है? सोचो। अरे भाई, जो बी फोर्स अप्लाई कर रहा है सी पे, वो इसका डबल है ना? देखो यहाँ पे टू बैठा है ना, बाकी सब कुछ तो सेम है। ये क्या है? ये डबल है इसका, ये इसका डबल है। तो अगर मैं इसको एक एफ बोल दूं, अगर मैं इसको एफ बोल दूं इस एक्सप्रेशन को, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 2f लिख सकती हूँ? तो कौन सा बड़ा है? बी की वजह से फोर्स ज्यादा बड़ा है या सी की वजह से फोर्स ज्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है भाई, 2f एफ से बड़ा है ना। और ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो बी का फोर्स है, अगर ये मेरी सी बॉडी है, तो 2f फोर्स चाहता है बॉडी इधर जाए, और एफ फोर्स चाहता है बॉडी इधर जाए। तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी? बॉडी विल गो इन दिस डायरेक्शन, है ना? इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? द नेट फोर्स विल एक्चुअली बी, ओके मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू बड़े में से छोटा वाला माइनस, ठीक है। बड़ा वाले फोर्स में से छोटा वाला माइनस, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन जो बड़ा वाला है ना, सो दैट विल बी टुवर्ड्स ए। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अगर ये वाला, अगर एफ बी, इस वाले डायग्राम को देखेंगे सारे, ये वाले डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, जहां पे मैंने हैशटैग बनाया। अब देखो, अगर एफ बी, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बड़ा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसको मैं किसी और कलर से बना देती हूँ। नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना? नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा। और इसको लिखोगे कैसे इस डायरेक्शन को? इस डायरेक्शन को बताओगे कैसे? तो इस डायरेक्शन को तुम लिखोगे कि सी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? टूवर्ड्स द ए बॉडी। ए है ना इसके इस तरफ, तो ए बॉडी की तरफ लग रहा है फोर्स। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? दैट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी इज टूवर्ड्स ए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन लिखनी बहुत जरूरी है, इसकी डायरेक्शन लिखनी बहुत जरूरी है। और 2f - f क्या होगा? f, ठीक है। और f मैंने किसको बोला था? f मैंने बोला था kq² बाय आर स्क्वायर को, इसी को बोला था ना मैंने f, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू kq² बाय आर। फाइन। अब मुझे इसका वैल्यू देना है, मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, मुझे उनको बताना है ना व्हाट इज द वैल्यू। तो अब हमने ना एक स्टार्टिंग पहली स्लाइड में ना एक वैल्यू को स्क्वायर में डाला था। हमें वो चीज गिवन थी क्वेश्चन में, देखते हैं क्या हम उसको यूज कर सकते हैं आगे, है ना? क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ सॉल्व करने के लिए? तो मैंने क्या डाला था ब्रैकेट में, कि मुझे गिवन है kq² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁵ ये तो कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा आंसर आया है वो kq² बाय आर स्क्वायर ही आया है। और मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन है। तो मुझे तो कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ना मैंने चार्ज की वैल्यू पुट करी, ना मैंने के की वैल्यू पुट करी, ना मैंने आर की वैल्यू पुट करी। मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि जो इसका आंसर है वो 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन है, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन। लेकिन 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 अभी ये आंसर क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू के साथ अब तक डायरेक्शन नहीं दी है। जब भी आपसे फोर्स का वैल्यू पूछा जाए, जब भी आपसे फोर्स का वैल्यू पूछा जाए और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, है ना? फोर्स क्या है? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का आंसर पूछा गया है आपसे, तो आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी है आंसर में, ठीक है। अगर आप सिर्फ वैल्यू दे दोगे, मैं तो नंबर काट लेती अगर मैं आपकी टीचर होती। अगर आपकी टीचर आपसे बहुत प्यार करती है तो हो सकता है वो आपको नंबर दे दे, पर मैक्सिमम टीचर्स आपसे प्यार नहीं करती है ना स्कूल में नहीं करती प्यार, तो अगर नहीं करती तो वो नंबर काट लेंगी। लेकिन हमें नंबर कटवाने नहीं है, हमें नहीं नंबर काटने का मौका देना मैम को। तो हम क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे साथ में। और क्या डायरेक्शन लिखेंगे?
हम लोग लिखेंगे कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन इज दैट द फोर्स इज एक्टिंग towards A. It is acting towards A. That is my final answer. Let me check. क्योंकि मैंने नोट्स नहीं देखे अब तक जब मैं आपको आंसर करा रही थी कि मैं सही हूं या नहीं, ठीक है। So let's match our answer. Yes, exactly. So the answer is that net force on C is equal to 2 into 10 raised to power minus 5 Newton. And what is the direction of the force? The direction of the force is towards A. Okay. So this is my final answer. तो मैं इसको एक क्लाउड में लिख देती हूँ आपके लिए कि ये हमारा फाइनल आंसर है। जिन बच्चों ने खुद करने की कोशिश करी क्वेश्चन और आंसर निकाला है, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। और जिनको नहीं आता, जिनको सॉल्यूशन देखना पड़ा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आंसर को छुपा कर फिर ट्राई करना उस क्वेश्चन को, और देखना कि नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कॉपी कर लिया, आंसर लिख लिया और फिर बंद कर दी कॉपी और फिर खोली ही नहीं, सीधा पेपर देने चले गए, नहीं, ऐसे नहीं करते। ऑलवेज ट्राई टू डू द क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे। अगर सॉल्यूशन देख के ही करोगे तो तुम में और बंदर में क्या फर्क है ना। बंदर भी तो कॉपी करता है, आप भी कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर हमें नहीं समझ आया पहली बारी में आंसर, हमने सॉल्यूशन देख लिया कि अच्छा अच्छा ऐसे सॉल्व होना है, हमने उसको समझ लिया, हमने उसको एक बार लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जब नेक्स्ट टाइम रिविजन करने बैठोगे तो ये नहीं करना कि फिर से रीड कर लिया सॉल्यूशन, नो। यू हैव टू हाइड योर आंसर, रीड द क्वेश्चन, ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ। पेपर में आंसर तो नहीं लिखा हुआ आएगा ना, पेपर तो खुद करना पड़ेगा जब सॉल्यूशन करना है। तो वहां पे क्या करोगे, यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना हाइड करना है सॉल्यूशन, क्वेश्चन को रीड करना है, ट्राई द क्वेश्चन, देखो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा दोबारा से प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है, हर बच्चा अलग होता है, ठीक है। हो सकता है अगर आपको 2 बारी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है, किसी को 3 बारी करने की जरूरत पड़े, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इफ यू वांट मार्क्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग जब तक आप बिना सॉल्यूशन देखे अपना आंसर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। अगर एक बारी आपने ये सॉल्यूशन देखने की हैबिट बहुत गलत है। आप क्या करते हो, आप सॉल्यूशन देखते हो, उसको कॉपी में कॉपी कर देते हो और आप कहते हो हाँ नाउ आई एम प्रिपेयर टू गिव माई एग्जाम, और फिर नंबर नहीं आते। कैसे आएंगे नंबर, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन कैसे करना है ना। आपको सॉल्यूशन को हाइड करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, और नहीं हो तो फिर दोबारा सॉल्यूशन देखो, कोई बात नहीं। बट तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक बिना सॉल्यूशन देखे आंसर ना निकाल लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एस, ठीक है। ऐसे ही आप कर पाओगे, ऐसे नहीं होते न्यूमेरिकल्स की सॉल्यूशन देखा और कर लिया तो फिर अपना दिमाग तो यूज करना सीखा ही नहीं ना। हमें तो इसको खोलना है, ये बुद्धि खोलनी है, हमें अपनी दिमाग खोलना है, ये जंग पड़ जाती है इसमें यूज नहीं करोगे तो इसको, ठीक है, इसको यूज करना है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है तो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, सो द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो वी हैव, तो अब क्या हो रहा है, द थिंग इज कि इतना टाइम इसलिए लग रहा है एक क्वेश्चन करने में क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, है ना, एक एक स्टेप बता रही हूँ। धीरे धीरे विल पिक अप द पेस। हम लोग क्या करेंगे, हम स्पीड से करते जाएंगे क्वेश्चन। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है, आपको सिखाने के लिए है कि न्यूमेरिकल्स को पढ़ते कैसे हैं। पहली लाइन से जो है आपको धीरे धीरे लाइंस पढ़ पढ़ के इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है, सॉल्व क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है। हम धीरे धीरे वो सीखते हैं। एक बार हमने वो चीज सीख ली ना, फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस। तो मोर क्वेश्चंस वी प्रैक्टिस द बेटर वी आर। ओके, चलो, let me write the question. So we have two identical metallic spheres. So we have two metallic identical spheres, A and B, each carrying charge Q, repel each other with a force F. A third metallic sphere C of the same size but uncharged
is successfully touched to both spheres and then remove away, what is the force of repulsion between A and B? Okay, so this is your question. Now pause the video for a minute. Try to solve this question on your own. Okay, and ट्राई इट. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शांत मन से सोचो. नहीं आएगा तो स्टार्ट द वीडियो, आई सॉल्व इट फॉर यू. अगर नहीं समझ आता मैं समझाऊंगी कैसे करना है. बट पहले प्लीज एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, कोशिश करो इसको करने की. सीधा सॉल्यूशन कॉपी मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है. ट्राई इट. नहीं होगा तो डेफिनेटली सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन यही है, कहीं भाग नहीं रहा. मैं ये वीडियो डाल रही हूँ यूट्यूब पे, यही रहेगी. ठीक है, सो ट्राई इट वंस. Okay, so now what do we have? So we have this question. Let me read it once again for you all. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन रीड करते जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ साथ देखते जाते हैं कि उस एक लाइन का मतलब क्या है. ठीक है, कि हमें हर एक लाइन को ऐसे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उसका क्या मतलब है. So let's start reading. Okay. So two identical metallic spheres A and B, each carrying charge Q, repel each other with a force. ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या है, आई हैव टू मेटालिक स्फीयर्स. लेट मी कॉल दिस स्फीयर ए एंड लेट मी कॉल दिस स्फीयर डी, एंड लेट अस से दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर. ओके, ये जो है वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इन दोनों के पास क्या है, चार्ज क्यू है. तो ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. रिपेल कर रहे हैं मतलब अगर दो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मतलब उनके पास जो चार्ज है ए और बी के पास वो सेम है. चार्ज जो है वो सेम पोलैरिटी का है. पोलैरिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है. ठीक है, तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो लेट अस से कि दोनों पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है. हम लोग नेगेटिव का क्यों ही पंगा ले, है ना, फालतू में नेगेटिव डाल के अपना दिमाग इतना ज्यादा लगाना पड़ेगा. हमें न्यूमेरिकल सबसे इजी इजी तरीके से करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, चार्ज ऐसा करते हैं. नेगेटिव में तो घबराहट होने है ना, कि भाई नेगेटिव आ गया, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा वो. पर चलो लेट्स टेक पॉजिटिव. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम लोग. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं हमें क्या गिवन है कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ए. यानी कि जो फोर्स है जो वो एक दूसरे पे एग्जर्ट कर रहे हैं वो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब दोनों पे चार्ज सेम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, दोनों पे चार्ज क्यू था. तो ये हमें दे रखा है कि एफ है, ये हमें एफ दे रखा है, हमें कोई वैल्यू नहीं दी. ठीक है, हमें क्या मत दो, है ना. हम लोगों ने लिख लिया कि जो चीज गिवन है. अ थर्ड मेटालिक स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज. फिर से हमारे साथ गेम खेली जा रही है, हमें एक न्यूट्रल स्फीयर दे दिया. is success is successfully touched to both spheres and then removed away. अब सक्सेसफुली टच्ड का मतलब क्या है, सक्सेसफुली टच्ड का मतलब ये है कि पहले आप एक स्फीयर से टच कर रहे हो, फिर वहां से हटा के आप दूसरे स्फीयर से टच कर रहे हो. आप एक साथ दोनों से टच नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप एक साथ दोनों स्फीयर से टच नहीं कर रहे हो. पहले आपने एक स्फीयर से टच करा, आपने उसको हटा लिया, फिर आपने बी वाले स्फीयर से टच करा, फिर आपने उसको हटा लिया. ठीक है, एंड देन रिमूव्ड अवे. व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी. और आपने कुछ नहीं करा उस सी को, आपने उसको सी को बस ऐसे टच टच करके फेंक दिया. और फिर आपने क्या करा, अब आपको बताना है कि ए और बी अगर उतने ही डिस्टेंस पे पड़े हैं जितने पहले थे
तो अब उनके बीच में कितना फोर्स है, व्हाट इज द न्यू फोर्स, क्योंकि चार्ज चेंज हो जाएंगे ना मैं न्यूट्रल बॉडी से टच करूंगी। सो लेट्स सी नाउ, दिस सीम्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि थोड़ा सा मजा आएगा करने में, चलो मुझे तो मजा आएगा, अब आपको भी आना चाहिए है ना। चलो लेट्स सी। तो हमने बोला कि ए बॉडी के पास चार्ज है क्यू और सी बॉडी है न्यूट्रल, यानी कि इसके पास चार्ज कितना है, 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टचिंग दीज टू चार्ज, टू बॉडीज। तो ये मेरा ए स्फीयर है, ये मेरा सी स्फीयर है। जब मैं इन दोनों को टच कर रही हूँ तो यहाँ पे क्यू और 0 है। और मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन आई टच टू बॉडीज द चार्ज गेट्स इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू बॉडीज। तो यानी कि Q प्लस 0 इज Q, दैट इज द टोटल चार्ज। और ये चार्ज जो है व्हाट विल हैपन, इट विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कितने बॉडीज के बीच में हो रहा है, टू बॉडीज के बीच में हो रहा है। तो यानी कि हर बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, अगर मैं क्यू चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ दो बॉडीज के बीच में, तो वो होगा Q/2 एंड Q/2। यानी कि ए बॉडी के पास भी चार्ज आ जाएगा Q/2 और सी बॉडी के पास भी चार्ज आ जाएगा Q/2। इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सी बॉडी को बी से टच करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, दैट द सी बॉडी इज टच सक्सेसफुली विद द टू बॉडी। सक्सेसफुली का मतलब क्या है, पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ। तो ए से तो टच कर लिया, तो देख लिया कि अब सी पे चार्ज आ जाएगा Q/2। अब इस सी बॉडी को मुझे बी बॉडी से टच करना है। तो बी बॉडी थी मेरे पास यहाँ पे, और बी बॉडी के पास था चार्ज Q। तो अगर बी बॉडी के पास चार्ज Q है और सी बॉडी के पास चार्ज Q/2 है और मैं इन दोनों को टच करती हूँ, if I make a contact between two bodies, I have charge Q and Q/2. Now what is the total charge? Q plus Q/2 is 3Q/2. That is 3Q/2. Now this charge has to get equally distributed between B and C. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है कि दोनों बॉडीज के पास इक्वल चार्ज आ जाए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दो बॉडीज के बीच में, दिस विल गेट हाफ, टोटल चार्ज विल गेट हाफ। तो अगर टोटल चार्ज हाफ हो जाएगा, तो एक बॉडी पे जाएगा 3Q/4 और एक बॉडी पे जाएगा 3Q/4। तो यानी कि अब बी के पास जो चार्ज है वो 3Q/4 है और सी बॉडी के पास जो चार्ज है वो 3Q/4 है। आ गया समझ, ठीक है। तो अब जब मैंने सी बॉडी को सक्सेसफुली क्या करा, कांटेक्ट में लाया ए बॉडी और बी बॉडी के साथ, तो फाइनली व्हाट इज द चार्ज ऑन द ए बॉडी, ए बॉडी पर जो फाइनल चार्ज है वो क्या है, Q/2। इस स्टेप के बाद तो ए का कांटेक्ट किसी से नहीं हुआ, तो यानी कि ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q/2। बी बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना है, इस स्टेप के बाद बी बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4। बी पे कितना चार्ज है, 3Q/4। और सी बॉडी पर कितना चार्ज है, सी बॉडी पर भी कितना चार्ज है, 3Q/4। दिस इज द फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडीज। ठीक है, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडीज इज दिस, ए पे है Q/2, बी पे है 3Q/4, सी पे है 3Q/4। Now, what the question is asking? Let's once again look at the question. The question is saying, I am reading the last line. What is the force of repulsion between A and the B body? What is the force of repulsion between A and B body? And how will we find the force of repulsion? अब मुझे पता है कि मेरे पास जो A बॉडी है उसके पास चार्ज है Q/2, जो बी बॉडी है उसके पास चार्ज है 3Q/4, and they are separated by a distance r. They are separated by a distance r. So what is the force between them now? We have K Q1 Q2 upon r square, and this is the repulsive force. This is the repulsive force. अब मुझे पता है कि what is the value of Q1? Q1 की value is Q/2. What is the value of Q2? It is 3Q/4. And what is the value of R? R की value is R square. Let's take the constants out. Constants R आप बाहर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा 3
डिनोमिनेटर में 4 2 8, ठीक है, 3/8, और अंदर क्या रहेगा, KQ² by R². दैट इज माई फोर्स, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स, है ना. A इज ट्राइंग टू मेक B गो अवे एंड B इज ट्राइंग टू रिपेल A. तो किस डायरेक्शन में है फोर्स, अगर मेरे को फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करना हो, तो A पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, और B पर जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है. अब फोर्स और इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए लेट मी ड्रॉ द आर लाइन लाइक दिस, कि आर जो है इज एक्चुअली ए से लेके बी के बीच का डिस्टेंस, और जो ए पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू बी इज रिपल्सिव, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और जो फोर्स लग रहा है बी पर ए की वजह से, दैट इज दिस. ठीक है, दिस इज दिस इज द फोर्स. And now in the question it was given that KQ² by R² is equal to F. ये given था ना question में, कि आपको दे रखा था they repel each other with a force F. So this was given कि KQ² by R² is equal to F. तो can I write this KQ by R² जो ब्रैकेट में है as F? सो 3/8F. तो अब F रिपीट हो गया, तो मैं इसको F नहीं लिखती, मैं इसको F प्राइम कर देती हूँ. ठीक है, F प्राइम इज द न्यू फोर्स. सेम नहीं लिख सकती ना, F इज इक्वल टू 3/8F नहीं लिख सकती, मुझे एक नया सिंबल देना पड़ेगा नए फोर्स को. तो मैंने नई फोर्स को क्या बोल दिया, F प्राइम बोल दिया. क्या बोला, F प्राइम, F बार, F डैश, कुछ भी बोल सकते हो. तो इट इज 3/8F. अब आप बोलोगे मैम ये तो कोई आंसर है ही नहीं, मतलब व्हाट इज दिस आंसर 3/8F, ये तो मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए ना, 10 20 15 30 100 1000 2000 50,000, कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए थी. ये एफ के टर्म्स में आप वैल्यू क्यों दे रहे हो. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, बच्चों को नहीं पता होता ये, मैं बता रही हूँ आज, कि आप क्या करोगे, आप आंसर उस जगह पर छोड़ दोगे जिस जग जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में मुझे गिवन था दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F. दिस वाज गिवन टू मी, दिस वाज गिवन टू मी. सो आई कैन लीव माय आंसर एट द पॉइंट, मुझे अपने आंसर को किसके टर्म्स में देना होगा, आई हैव टू गिव माय आंसर इन द टर्म्स जो क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है. और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वांटिटी, ये F गिवन है मुझे क्वेश्चन में, right? This F is given to me in the question. So where will I leave my answer? Will I leave my answer at this step or this step? I will leave my answer at this step and not this step. अगर मैं इस स्टेप पे अपना आंसर छोड़ूंगी, मैम हमारी नंबर काट लेगी. मैम को मौका मिल गया नंबर काटने का. मैम कहेगी तुमने आंसर उस टर्म्स में नहीं लिखा जिस टर्म्स में मैंने तुमसे आंसर मांगा था. मैंने तुम्हें कहा था एफ के टर्म्स में आंसर निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में एफ गिवन है कि इस क्वांटिटी को हम एफ बोल रहे हैं, तो आंसर भी तो तुम उसी क्वांटिटी में दोगे जो क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो अगर ये वाला आंसर दोगे, अगर ये वाला आंसर दोगे, ये वाला आंसर दोगे, यहाँ पर छोड़ दोगे, तो मैम को मौका मिल गया नंबर काटने का. मैम ने काट लिए नंबर, समझो, कटवा लिए तुमने नंबर. ठीक है, तो मैम को मौका नहीं देना आंसर काटने का, मार्क्स काटने का. ठीक है, तो आंसर क्या दोगे तुम, आंसर फाइनल दोगे मैम को कि मैम the net repulsive force the net repulsive force between A and B is equal to 3/8 times F. This will be my answer. और अगर मैंने ये आंसर लिखा है with the proper explanation कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे हूँ, तो मैम तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकती और आपको मिलेंगे फुल मार्क्स. ओके, सो अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर सही करा है, देन दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल. अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाए हो, आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा है, आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में. तो एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, अब मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया ना, तो आप ये सोच रहे हो मैम तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा रही है, मैम एंट्रेंस का पढ़ा ही नहीं रही. क्यों मैं एंट्रेंस का कैसे नहीं पढ़ा रही, अब मैं सपोज तुम्हें यही क्वेश्चन दे दूं और मैं तुम्हें साथ में 4 ऑप्शन दे दूं. ठीक है, अब मैं तुम्हें 4 दे दूंगी ऑप्शन, और तुम्हें बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो मैं तुम्हें एक आंसर दे दूंगी कि एक फोर्स है 3/8F, एक दे दूंगी मैं तुम्हें 3/4F, एक दे दूंगी मैं तुम्हें 1/8F, एक मैं दे दूंगी तुम्हें 1/4F. अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज है ना,
जब तक बच्चा आंसर नहीं निकालेगा, है ना, जब तक तुम ये सारे स्टेप्स करके आंसर तक नहीं पहुंचोगे, तुम एमसीक्यू में सही आंसर कैसे करोगे? ठीक है। हाँ, बस जब तुम एमसीक्यू करोगे तो तुम्हें काफी सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। तुम्हें मतलब एक एक डायग्राम बना के देखना नहीं है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। यू हैव टू मेक अ डायग्राम इन योर हेड कि अच्छा इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेट फोर्स इन दोनों को माइनस करके आएगा, जैसे करते हैं ना माइंड में कैलकुलेशन। तो वहां पे बहुत सारा गेम जो है तुम्हारा वो विद प्रैक्टिस आएगा। तुम डायग्राम्स पहले अपनी कॉपी में बनाना स्टार्ट करोगे, एक टाइम के बाद जब तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम अपने आप वो डायग्राम्स अपने हेड में बनाना शुरू कर दोगे कि हाँ ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पता ही है इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो नेट फोर्स जो है वो दोनों का माइनस होगा, दोनों को माइनस करके सिर्फ एफ बचेगा, इस एफ की वैल्यू मुझे गिवन है तो ये आंसर है, और मैंने जल्दी से टिक कर दिया, दिस इज द आंसर। ठीक है। तो ऐसे करते हैं जब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। तो जो तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो उसी से हाउ यू कैन एस योर एंट्रेंस एग्जाम्स। जो तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें क्या हो, तुम्हें इतनी हैबिट हो क्वेश्चन को आंसर करने की कि तुम दिमाग में अपनी कैलकुलेशन कर पाओ और तुम जल्दी जल्दी टिक करते हुए आंसर करो। ठीक है। तो आई होप जो मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें दो क्वेश्चंस कराए हैं अपना टाइम लेके एकदम शांति से, वो तुम्हें समझ आ गए हों। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टू क्वेश्चंस यू कैन ask me in the comment section. I hope you like this video. If you like this video, then definitely give me a like. Share this video with all your friends. Help them to study. And if you want like some more topics that आपको चाहिए कि मैम ये पढ़ा दो, ये समझ नहीं आ रहा, so you can comment me. I will definitely make a video on it. And do subscribe my channel. Thank you so much and keep studying, keep enjoying. And bye bye. Bye bye.